Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dhanamveer. This is Dhanamveer Singh and today we will going to discuss about our next topic, that is plastids. Dear students, so far we have discussed about endomembrane system and mitochondria in the topic cell organelles. बेटा सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस किया. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बेटा हमने बोला था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिगिंस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द nucleus and then from ER, after that Golgi body, after that lysosomes, and after that vacuoles. So these organelles form endomembrane system. Okay, after that we have discussed about mitochondria. Why mitochondria is called as powerhouse of the cell? Because it performs the process that is called as respiration, and through this process the breakdown of glucose takes place, and due to this breakdown our body get the energy in the form of the ATP, and this ATP is called the energy currency of the body. ATP is called the energy currency of the body because our body organs or our body needs energy in the form of ATP only. That's why ATP is called energy currency of the body. Okay, so and one most important topic, that why this mitochondria is called the semi-autonomous organ. So the cell organelle that have their own DNA or genetic material in the form of circular DNA. इनका circular DNA होता है. That's why they are able to form new mitochondria through सिंपल फिजन. क्या होता है बेटा? फिजन के थ्रू इनके माइटोकॉन्ड्रिया दो में ब्रेक हो जाती है, तो सिंपल फिजन के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द दिस सर्कुलर डीएनए. दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन. So these are some important questions that are sometimes asked in the board examination or the competitive examination. Now we will begin with the plastids. What are the plastids? Plastids are those cell organelles that are responsible for the providing color to the different type of the leaves of the plants. क्या होता है बेटा? प्लांट की लीफ में जो स्पेसिफिक कलर होता है, दिस कलर इज प्रोवाइडेड बाय द plastids. If there is chromoplast, then they provide on the case of leaves and also in the case of fruits. फ्रूट्स में भी बेटा यही कलर प्रोवाइड करते हैं, लीफ में भी यही कलर प्रोवाइड करते हैं, और फ्लावर के कलर में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है. So if there is red colored fruit or flower, we can say that अगर बेटा red color कोई fruit है like in tomatoes, so there are a special type of plastids are present that are called as chromoplast. Chromoplast are responsible for the red color. If there is a green color, बेटा अगर कहीं पे green color की leaves दिख रही हैं, green color के fruits दिख रहे हैं, तो this green color is provided by a special type of plastid that is called as chloroplast. What is called as chloroplast? Red by chromoplast, chromo. And if there is a plant that have white colored fruit or white colored leaf, that we can say that like in the case of the white brinjals. बेटा white brinjal आप लोगों ने देखे होंगे. White brinjals are provided color by the specialized plastid that are called as leucoplast. What is called as leucoplast? Leucoplast. So these are a special three type of the plastids that are found inside the plants. बेटा ये तीन टाइप के plastids होते हैं जो स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेली हैं, जो प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं. So plastids are found in all plant cells and in the euglenoids. Euglenoids means all those organisms which are belongs to the Euglena family, means protozoans. These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting the specific color to the plant. Okay बेटा, the most important line is this. बेटा ये लाइन के अंदर क्या लिखा है? दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट. इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं. पिगमेंट्स मीन्स दोज मटेरियल्स और दोज केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द प्लांट. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड. ओके, based on the type of pigments, plastids can be classified into 3. बेटा कितने में क्लासिफाई होते हैं? 3 में. किसके बेस पे? On the basis of pigment that have first chloroplast, and leucoplast. Okay,
next thing. So first we will discuss about the chloroplast. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoids pigment. These two most important pigments, carotenoids and chlorophyll pigments, which are responsible for trapping light energy essential for the photosynthesis. Means chlorophyll, the main function of chlorophyll provides always green color to the plants. Okay, chlorophyll always provide green color to the plant, to the leaves, to the fruits and etc, some other parts. एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी. बेटा क्या करती है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल का. वी नो दैट ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन. और बेटा ये सन से आई हुई एनर्जी को ट्रैप करती है और इस एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में बाइंड कर देती है और क्या बना देती है, C6H12O6 ग्लूकोज इसको हम बोलते हैं. 1 सेकेंड. ग्लूकोज बेटा कहाँ में कन्वर्ट कर देती है इसको, ग्लूकोज में. एंड व्हेन ग्लूकोज इज बर्न आउट, अब जब बेटा ग्लूकोज की बर्निंग होती है इन द केस ऑफ रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब फिर से यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है और क्या होता है, CO2 और H2O फिर से बाहर निकल जाते हैं. तो बेटा जो फोटोसिंथेसिस एंड वी कैन से दैट रेस्पिरेशन आर द कपल्ड रिएक्शन. बेटा ये दोनों एक दूसरे के कपल्ड रिएक्शन है, मीन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो एनर्जी को ट्रैप कर लेती है और उसके बाद में मीन्स सनलाइट को ट्रैप करता है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में, और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है. और फिर वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जहाँ हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाते हैं और एटीपी इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी निकल जाती है. ओके, एसेंशियल फॉर द ट्रैपिंग essential for the energy for photosynthesis. In chromoplast, fat soluble carotenoid pigment. Okay, which type of fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and other are present. Okay, carotene, xanthophylls and other are present. This gives the part of the plant a yellow, orange और red color. बेटा कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं ये, येलो, ऑरेंज और रेड कलर. ये तीन कलर प्रोवाइड करते हैं क्लोमोप्लास्ट, येलो, ऑरेंज और रेड. द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस पिगमेंट्स और प्लास्टिड्स. ओके, द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ द varied shapes and size with stored nutrients. Means their shape and size also varies and they are responsible for the storing some nutrients. Amyloplast, दे आर ऑफ 3 टाइप. बेटा कितने टाइप के होते हैं ये, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 टाइप का है, कि एमाइलोप्लास्ट है, कि एलियोप्लास्ट है एंड सेकेंडेड एल्यूरोप्लास्ट, जो एल्यूरॉन लेयर में मिलता है. जब आपको एम्ब्रियो पढ़ाएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, एम्ब्रियो, प्लांट एम्ब्रियो, तो प्लांट एम्ब्रियो की जो लेयर होती है दैट इज स्टोर द न्यूट्रिएंट, दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट और एल्यूरॉन मेम्ब्रेन. सो एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट in the form of starch, example potato. Elioplast are store oil and fat, whereas eleuroplast store nutrients. Okay, nutrients in the case of the some minerals they can also stores. Okay, the next thing is majority of the chloroplast of the green plants, means here we will discuss the chloroplast in detail. Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. Means we can say that leaves, बेटा अगर लीव्स की हम एनाटॉमी का भी देखते हैं तो आउटर लूजली अरेंज सेल होती हैं दैट आर कॉल्ड एज स्पॉन्जी सेल्स और मीजोफिल सेल्स. स्पॉन्जी मीजोफिल बेटा क्या बोलते हैं इनको, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं. सबसे सॉफ्ट होती हैं और सबसे डेंस अमाउंट में यहीं पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. These are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelle having the variable length 5 to 10 micron and width 2 to 4 micron. Okay, means those chloroplasts that are present in the mesophyll cells are lens-shaped. आप लोगों ने लेंस देखा होगा, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और रिबन लाइक, बिल्कुल चपटे जो होते हैं.
ऑर्गेनेल्स हैविंग द वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रॉन्स में इनकी जो लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रॉन की होती है और जिनकी वेड्थ होती है चौड़ाई होती है दैट इज 2 to 4 माइक्रॉन. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll cells. बेटा क्या होती है, एक एल्गी होती है, आपको बना के दिखाते हैं. ऐसे एक एल्गी होती है दैट इज कॉल्ड एज क्लैमाइडोमोनास. बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है क्लैमाइडोमोनास. यहाँ पे उसमें यहाँ पे बड़ा सा एक क्लोरोप्लास्ट होता है और दिस एल्गी कंटेन्स दिस इज सिंगल सेलुलर एल्गी एंड कंटेन्स ओनली वन क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर बड़ा सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है. लेकिन अगर हम वहीं पे लीफ की मेसोफिल सेल की बात करें तो वहाँ पे 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं. दैट्स वाई लीव्स अपीयर्स ग्रीन कलर. बेटा इतना ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है और जब ये क्लोरोप्लास्ट इतना ज़्यादा है तो क्लोरोफिल भी उतना ही ज़्यादा होगा. इसी वजह से लीव्स हमको ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं. ओके, दिस इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बेटा ये बड़ा टफ बनाया है, सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं. आपको क्या कर लेना है. और बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है. फॉर दैट नंबर ऑफ रिसर्चर्स थॉट दैट इज अ ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. मीन्स वो मानते हैं कि एक ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसके अंदर एक थर्ड मेम्ब्रेन मिलती है दैट इज कॉल्ड ए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. कौन सी होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इसके लुमिनल पार्ट को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट से अलग करती है. हाँ बेटा, और ये जो स्टैक्स हम सिक्के जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे यहाँ पे बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना. ये बेटा जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के ऊपर एक, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेना. एंड दिस पार्ट, ये बेटा जो बाहर की तरफ बचा हुआ पार्ट है जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है. अब बेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इनटू 2 टाइप ऑफ द प्रोसेसेस. फोटोसिंथेसिस बेटा हमेशा 2 प्रोसेस में होती है. एक वो प्रोसेस जब क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है. तो बेटा सनलाइट के ट्रैपिंग का प्रोसेस ऑलवेज कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के ऊपर होता है. सॉरी, ये ग्रेना के ऊपर होता है. सनलाइट को ट्रैप करने का प्रोसेस ग्रेना के ऊपर होता है और इसी सनलाइट को या एनर्जी को पकड़ने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, लाइट रिएक्शन और एनर्जी ट्रांसडक्शन रिएक्शन. लाइट रिएक्शन और एनर्जी ट्रांसडक्शन रिएक्शन. अब बेटा ये लाइट जो पकड़ ली गई है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करेगी और क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी. और वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है. दिस इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन. डार्क रिएक्शन. तो बेटा फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है. एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना में होता है और डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होता है. लाइट रिएक्शन ग्रेना में ही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट. लाइट को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज केमिकल्स दैट आर कॉल्ड एज फोटोसिस्टम. प्रोटीन का बना हुआ एक मशीनरी होता है, इट इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टम. एंड दिस फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलेकॉइड. और सिर्फ बेटा थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. That's why the light reaction or energy transduction reaction only confined to the thylakoid membrane. इसलिए बेटा जो एनर्जी ट्रांसडक्शन रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो पाती है. और जैसी एक बार एनर्जी बन गई है, सारे के सारे सिस्टम NADPH और ATP बन गया है. अब ये NADPH और ATP जो एनर्जी बनी है, अब ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को सनलाइट के साथ में या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, उसका कार्बन एसिमिलेशन कर देगी, उसको एसिमिलेट कर देगी, CO2 को कन्वर्ट कर देगी C6H12O6 में. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. बेटा जो लाइट रिएक्शन होती है यहाँ पे जैसे आप लोगों ने हमेशा पढ़ा CO2 + H2O C6H12O6. अब यहाँ पे दिखाते हैं. एक होता है लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है. 2H2O. वाटर का ब्रेकडाउन होता है, 4 प्रोटॉन निकलते हैं +4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन निकल जाती है. एक डिफरेंट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन. डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, जो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकले थे इन्होंने क्या बनाया है, ATP और NADPH. या NADPH भी लास्टली ATP में कन्वर्ट होता है, ATP.
एटीपी एनर्जी देगी CO2 को, ये यहाँ पे एटीपी एनर्जी देगी, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6। इसको एक और नाम देते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है, हमको पता है, जहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाता है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। दिस इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द कार्बन। बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और चारों वैलेंसी को फिल कर रहा है कार्बन की, एंड दिस इज मोस्ट रिड्यूस फॉर्म ऑफ द कार्बन। So we can also say that in the dark reaction or carbon assimilation reaction, the most oxidized form of the carbon dioxide converted into the most reduced form, that is glucose. Okay, so this is we can say that this is a phenomena that carried out inside the chloroplast when there is photosynthesis takes place. तो बेटा याद रखना, जो ये वाटर का ब्रेकडाउन है, breakdown of water and formation of glucose from carbon dioxide, both reactions are taking place in different parts of the chloroplast. ब्रेकडाउन ऑफ वाटर बेटा कहाँ पे होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बेटा आप लोगों को अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। ओके, so the like mitochondria, the chloroplast are also double membrane bound of the two. The inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called as stroma. ठीक है बेटा, जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के बाद में जो ऐसे हमने किया था और यहाँ पे हमने स्टैक्स बना लिए थे, इन स्टैक्स के बाद जो स्पेस बचा था दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? स्पेस बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in the stroma. जैसे हमने आपको बताया ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो स्टैक्स के फॉर्म में होते हैं, सिक्के से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम स्ट्रोमा नाम देते हैं। थाइलेकोइड आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पिल्स ऑफ द क्वाइंस कॉल्ड द ग्रेना। ओके, और द intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae. बेटा क्या स्ट्रोमा लैमेली क्या है? आपको दिखाते हैं। स्ट्रोमा लैमेली ये क्लोरोप्लास्ट था, ये इसके अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का जो बना हुआ ग्रेना था, और यहाँ पे देखते हो कभी कभी दो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स को या ग्रेना को एक स्पेशल टाइप की बेटा ये स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेली और थाइलेकोइड लैमेली। इसको बेटा क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा लैमेली और थाइलेकोइड लैमेली। जो बेटा ये कनेक्ट कर रही है, स्पेशल टाइप की जो ट्यूब है, डक्ट है जो कनेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली और थाइलेकोइड लैमेली। थाइलेकोइड लैमेली कनेक्ट द थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इनक्लोज a space called lumen. जो बेटा अंदर का स्पेस है ग्रेना के, दैट इज कॉल्ड lumen. The stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and protein. कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए, दैट आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। मीन्स ये प्रोसेस बेटा कहाँ पे हो सकती है? दिस प्रोसेस ओनली कन्फाइंड टू द cytoplasm. It also contains a small double stranded circular DNA. Most important thing, a small double stranded circular DNA. बेटा इस टाइप का DNA होता है, सर्कुलर DNA। एंड राइबोसोम्स, बिकॉज ऑफ DNA है बेटा तो राइबोसोम होंगे ही उससे प्रोटीन बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ DNA कन्वर्ट द mRNA एंड दिस mRNA फॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। बेटा जो mRNA बनता है DNA की जो कॉपी होती है, इट इज कॉल्ड मैसेंजर RNA। मीन्स ये मैसेंजर का जो काम करता है प्रोटीन बनाने के लिए, ये अपने आप को प्रोटीन में तब कन्वर्ट करेगा, अपनी रीडिंग को तब बताएगा जब उसको राइबोसोम्स मिलेंगे। राइबोसोम्स की रीडिंग को पढ़ते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. The ribosomes of the chloroplast are of smaller 70s than the
साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। बेटा जो उनका राइबोसोम होता है आइदर इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे बेटा वो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो, दे हैव द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और वी कैन से दैट 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। जो इनके अंदर बेटा राइबोसोम है वो 70S टाइप का है। जो उसका स्मॉल सब यूनिट बेटा 70S का है वो कितना होता है 30S होता है। जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S होता है, ठीक है। जबकि 80S राइबोसोम जो यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, जो उनका लार्ज सब यूनिट है वो कितना होता है 60S होता है और जो उनका स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40S होता है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक सिनेरियो ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्टडी था और प्लास्टिड्स की बेसिक स्टडी था। यहाँ पे हमने पढ़ा देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कितने टाइप के हैं 3 टाइप के हैं। दिस प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इनसाइड इट, इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस पिगमेंट के बेस पे 3 टाइप के होते हैं। दोज क्लोरोप्लास्ट दैट हैव रेड पिगमेंट्स और येलो पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जिनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। और बेटा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था एटियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट। जो बेटा क्या करते हैं ये यहाँ पे जो लिखे थे 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एलेरोप्लास्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ सम सब्सटेंसेस, विटामिन्स में न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स को बेटा ये स्टोर करने का काम करते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक students this video is helpful for you. If this video is helpful for you then please like this video and also share this video with your friends and subscribe my channel. Okay dear students.